हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू meucoaching academy। मैं हूं आपकी महिमा मैम एंड आई एम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर फॉर 9th standard मैथमेटिक्स एंड वी वर स्टडीइंग चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। सब कुछ याद है? You have your notes with you? Just quickly revise it. What we have all seen? We have seen different parts of lines and angles. The line, then line segment, ray, then we saw about angle, right? Then we saw different types of angles. Then two rules that we studied in the end. कौन से दो रूल्स थे? चलो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं जो हमने रूल्स के ऊपर रिवाइज करते हैं। क्या था हमारा? सपोज चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर। व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज द रे, give say it is OA. Now these are the two rays which are going. So it is M and here it is B. So what is given? Here it is given it is 45 degree, this is 30 degree. What we have seen, क्या पढ़ा था हमने लास्ट? जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका कौन सा एंगल बनता है? With the straight line, two rays are originating from the same point. What this angle is called? It is called straight angle or measurement of 180 degree. Right? So what does it mean when you are measuring 180 degree? How can you solve this question? You already know, right? These three angles, however line you will make, इस रे से जॉइन होने वाले कितनी भी रेस को बना दो, अल्टीमेटली क्या बनेगा आपको? The whole sum of the angles will be 180 degree always. So what we can do here? We can write angle OBN plus angle MBN and plus angle NBA. Right? These are the linear pairs, right? These three angles are the linear pair because they are lying on a straight line. Straight line पे three rays, दो rays बनाई गई. The angle is being formed by these rays, right? So they are the angles of linear pair. So the sum will be always 180 degree. Now what we know OBM is 30 degree. It is given already. Then MPN that we have to find. Then we don't know, right? Then NB is given as 45 degree. What will get? 30 plus 45 will get 75. So angle MPN, the 75 with here 180. In next line you will get MBN is equals to 180 minus 75. What will be the answer? You will get MBN is 105 degree. So this is 105 degree. Clear? It is just a quick revision for the concept of linear pair. Right? So based on this, we are having one axiom. Axiom is basically a concept that you have to accept without a proof. That's what we call axiom. Now, right now, we can prove it also. Okay. Now, what is the axiom? If a ray stands on a line, means this is a line OA, and if a ray is standing on that line, then the two sum of the adjacent angle is 180. Means क्या मतलब बोल रहा है? If you are taking a line like this, and you are standing two rays on this line, or you can say only one ray you are standing on this. So the two angles that you are getting, they are all, both of them are adjacent angles. Adjacent angle किसको बोलते हैं? So adjacent angle का concept एक बार clear होना चाहिए. So please give answer in the comment box. What is mean by adjacent angle? When the angle will be considered as adjacent. Okay. So these two are adjacent angles. So their sum will be 180. That's what this axiom is saying. Right? Okay. Now let's come into the next concept. Vertically opposite angles. किया था हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला पार्ट कल। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा? What we know that if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. तो अगर दो लाइन here AB and CD are intersecting each other, then the vertically opposite angle will be found to be equal. So if this is 60 degree, it is also found to be 60 degree. Correct? Concept clear? Okay, now let's move on to some more examples from your exercise, from your textbook and some other reference books also, so that you get the understanding in a proper way. Okay, so this is the example. What we are saying here, OP, OQ, OR and OS. All are the rays which are being originating from this point. ये सारी rays है जो इस point से originate हो रही है. And what is the question? You have to prove that angle POQ means this, angle QOR means QOR, angle SOR means this one, and POS means this one. So all these four angles
When you add, you will get 360. This is what you have to prove. So generally, if you can relate, just please do give me feedback. Definitely हमेशा prove that वाले क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं, है ना, समझ में नहीं आता कैसे प्रूव करना है. तो क्या करना है इसमें, अगर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है, हाउ टू सॉल्व दैट. सो सिंपल मेथड इज जस्ट रिमाइंड द डेफिनेशंस इन योर माइंड. आपको डेफिनेशंस पता होने चाहिए आपको करना क्या है. जस्ट गो विद द फ्लो, आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा उसका. देयर इज नो नीड टू मग अप. Never mug up the proofs. Okay, just try to understand what we have to do here. Clear? So we have to find that all of these is 360 degree. So what are the recent concepts we have done? Linear pair, vertically opposite angles. Vertically opposite angle can you see here? कोई ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ यहाँ पे vertically opposite angle यूज हो रहा है? No, right? So vertically opposite angle मुझे ऐसे होता है, दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है. तो यहाँ पे ऐसा कुछ पर्टिकुलर पॉइंट नहीं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट से 3 रेज है जो एमर्ज हो रही है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. बट एक चीज लग रही है 360 डिग्री. 360 डिग्री हम कैसे प्रूव कर पाएंगे? समथिंग लाइक 180. तो हम इसको यूज करके हम कैसे यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज अ फॉर्मूला फॉर लीनियर पैर. लीनियर पैर में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बने उनका सम हमेशा 360 होता है. तो अगर हम टू साइड्स हमने प्रूव कर दिया, लाइक हियर आई एम प्रूविंग, यहाँ पे मैंने प्रूव कर दिया ये 180 है एंड दिस साइड आई प्रूव कि ये 180 है, तो मिल जाएगा हमें टोटल 360. एंड दिस इज द बेसिक थिंग यू शुड नो कि सर्कल हमेशा पूरा एंगल कितना फॉर्म करता है. दिस होल एंगल इज 360 डिग्री. सर्कल का जो पूरा कंबाइन एंगल होता है दैट इज 360 डिग्री. ओके, चलो नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. हाउ टू सॉल्व इट. क्या करना है यहाँ पे, इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से. वाई? हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं बिकॉज हमें वो लाइन नहीं दिख रही है. स्ट्रेट लाइन हम अज्यूम कर लेते हैं. ये हमारे पास OQ है, ये रे OQ को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं. यहाँ पे I am extending this ray OQ a bit and let's give it the name as A. ये OQ को मैंने extend कर दिया and made it A over there. Now simple, most simple thing is it's a very simple question. Take this line. क्या देखा था हमने, जब एक लाइन के ऊपर जितने भी रेज बने उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, राइट? सो AOQ क्या है यहाँ पे? AOQ is a straight line, है ना? स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना AOQ की. सो व्हाट यू कैन डू, क्या आप दिखा सकते हो आप? यू कैन राइट, जस्ट हमेशा यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखना है, उसके बाद आपको बाजू में रीजन लिखना है. सो इक्वेशन क्या आएगा यहाँ पे? एंगल AOP, तो एंगल AOP प्लस एंगल POQ, एंगल POQ, है ना? ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180. द रीजन विल बी simply linear pair. Linear pair है ना, that's why, right? Now consider this line OQ. अब नीचे वाले साइड पे देखो, अभी 3 एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना? 3 एंगल्स का सम भी वैसे कुछ होना चाहिए, right? So now let's do this. AOS, angle AOS plus angle SOR, angle SOR plus angle यहाँ पे क्या लिखा? QR. अभी QOR will take according to question. इनका सम भी कितना होना चाहिए? 180. Again the reason is same, linear pair, है ना? linear pair का डाउट तो नहीं है ना? Just ask if you have even any doubt. Try तो एक बार definition को revisit कर लो नोटबुक में जाके या टेक्स्ट बुक में जाके. you'll understand. linear pair क्या होता है? straight line पे जितने भी हम एंगल्स बनाएंगे सबका सम कितना होता है? 180 होता है. That's what linear pair is. देख रहे हैं ना, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको हमने रेफरेंस लाइन ले लिया कि ऊपर जितने एंगल्स हैं यहाँ पे क्या बनेगा? 180 बनेगा. एंड सिमिलरली इसके नीचे जो लाइन है यहाँ पे क्या बनेगा? इधर भी 180 बनेगा. बस वी यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट. अब क्या करते हैं हम, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये वाले इक्वेशन को, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं. व्हाट विल डू? एडिंग इक्वेशन 1 and 2. व्हाट विल गेट बाय एडिंग द इक्वेशन 1 and 2? क्या मिलेगा आपको? चलो ऐड करते हैं. एंगल AOP प्लस एंगल POQ. कैसे ऐड करते हैं हम इक्वेशन को? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड, राइट? तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारा इस इक्वेशन में, देन इस इक्वेशन में ऐड करते हैं. एंगल AOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180. क्लियर? सिंपली हमने इक्वेशन को ऐड कर दिया, राइट? नाउ अभी हम यहाँ पे देखते हैं, हमें ये प्रूव करना है. इसको थोड़ा अरेंज करने की. पहले हमने क्या प्रूव करना है? POQ. फिर हमारा POQ इसको हम आगे लिख लेते हैं. एंगल POQ प्लस एंड वी हैव QOR. एंगल QOR
प्लस देन वी हैव SOR ये रहा प्लस एंगल SOR देन वी हैव POS तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे है POS नहीं मैम POS तो है ही नहीं POS कहाँ से आएगा चलो बनाते हैं क्या बचा ये हमने ले लिया ये हमने ले लिया ये हमने ले लिया ये दोनों बचे AOP प्लस AOS ऐड करके देखो इसको AOP प्लस AOS है ना ये पूरे एंगल को हमने आप करके लिखा हुआ है ना तो हम क्या लिख सकते हैं इसको एंगल AOP प्लस एंगल AOS इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा तो एट दिस यू विल गेट 360 राइट नाउ एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR एंड दिस is equal to angle HC bonded POS हो रहा है ना POS सिर्फ डिवाइड कर POA प्लस AOS से इसको हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एंगल POS that will be 360 प्रूव हो गया ये हमें इक्वेशन से प्रूव करना था सी दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव सो हैंड्स प्रूव इजी है ना कुछ नहीं करना है सिर्फ लीनियर ब्रेड कॉन्सेप्ट लगाया और हमने लाइन क्यों एक्सटेंड करी बड़ी क्वेश्चन आ सकता है लोगों को कि लाइन क्यों एक्सटेंड की हमने वैसे एज इट इज फिगर में क्यों नहीं रखा जिस समय उसको दिखाने की कोशिश की कि एक स्ट्रेट लाइन है तब हम उसको लीनियर का यूज कर पाएंगे जस्ट दैट्स व्हाई हमने एक्सटेंड किया लाइन इज इनफाइनाइट थिंग यहां से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं है ना तो हमने जस्ट इसको एक्सटेंड किया वी हैव नॉट मेड एनी चेंजेस इन फिगर वी हैव जस्ट एक्सटेंडेड अ लाइन सो दैट्स नॉट समथिंग वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग ओके क्लियर हो गया ये प्रूव हमें जो करना था सिंपल वन चलो नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट let's go to the next exercise 6.1 okay exercise के कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं कुछ का मैं हिंट दूंगी that you have to solve by your own अगर नहीं आएंगे तो ask me the doubt I'll clear in the next lecture okay क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिस इज द फिगर ठीक है ये एक रे जा रही है ये एक वर्टिकली अपोजिट ये एक रे से कट कर रही है लाइन दिस इज द रे व्हिच इज इंटरसेक्टिंग फ्रॉम हियर नाउ गिवन इज AOC plus BOE 70 AOC plus BOE इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है 70 ठीक है एंड देन फाइंड क्या करना है हमें ये भी दिया हुआ है BOD इज 40 डिग्री व्हाट वी हैव टू फाइंड एंगल BOE ये वाला एंगल फाइंड करना है एंड यू हैव टू फाइंड रिफ्लेक्स ऑफ COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है व्हाट यू विल डू दिस इज ऑल अबाउट द लीनियर पैर वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको बेसिक वही चीजें लॉजिक यूज करना है सी ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है AB है ना यहाँ पे ये दो रेज इससे ओरिजिनेट हो रही है तो इन तीनों एंगल्स को अगर ले लें हम 1 2 3 क्या हो जाएंगे दे आर फॉर्मिंग लीनियर पैर है ना लीनियर पैर फॉर्म कर रहे हैं तीनों एंगल चलो फिर इनको ऐड कर लेते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री रीजन इज अगेन इट इज लीनियर पैर है ना अभी हमें क्या दिया हुआ AOC प्लस BOE ये हमें दिया हुआ है इसका सम हम लिख लेते हैं यहाँ पे 70 डिग्री एंड COE दैट इज नॉट गिवन सो वी हैव टू फाइंड इट राइट तो एंगल COE यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें 180 माइनस 70 माइनस करो जल्दी अच्छा किसको इसको वैदिक मैथ्स आता है यहाँ पे यू नो कैलकुलेशन बिकम्स वेरी फास्ट यूजिंग वैदिक मैथ्स मुझे बताना किसको आता है ओके 180 माइनस 70 इज 110 राइट COE मिल गया हमें COE के रेट हमें क्या फाइंड करना था ये फाइंड करना था चलो इसको फाइंड कर लेते हैं जल्दी से रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है क्या बताया था रिफ्लेक्स का मतलब कि अगर हम एक एंगल ले रहे हैं हमें इसका कुछ x दिया हुआ है दिस द होल एंगल अपोजिट टू इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स मैंने क्या बताया ये जो पूरा सर्कल बनता है वो एंगल कितना फॉर्म करता है 360 डिग्री व्हाट यू मीन रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करोगे आप 360 माइनस तो हमेशा याद रखना है रिफ्लेक्स फाइंड करने किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो जस्ट सबट्रैक्ट इट फ्रॉम 360 क्या करना है यहाँ पे 360 माइनस एंगल COE क्या हो जाएगा 360 माइनस COE कितना आया हमारा 110 है ना कितना मिलेगा हमें इसको माइनस करोगे तो 0 माइनस 0 0 6 माइनस 1 5 3 माइनस 1 2 मीन्स हमारा रिफ्लेक्स COE आ गया 250 डिग्री दिस वी गॉट नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा BOE फाइंड करना वो यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करते हैं है ना COE हमें कौन सा एंगल क्या अब ये हमें फाइंड करना है BOE की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आपको ये मिल गया अब हमें लीनियर पैर्स का अलग कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट पार्ट ओके
अब हम ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं लेते हैं, क्यों? बिकॉज हमें इन दोनों के सम नहीं पता है, हमें सिर्फ सम पता है, इनको इंडिविजुअली हम नहीं जानते। सो नाउ लेट्स टेक अनदर पेयर। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस लाइन के साथ ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना? दिस इज आल्सो वन स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट यू कैन डू हियर, आप यहाँ से इन तीनों को ले सकते हो, 1 2 3, दे आर आल्सो फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, है ना? ये तीन एंगल से लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे। चलो अब इनको यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग दिस एंगल POE। क्यों हम इसको फाइंडिंग इसको यूज क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हमें इन दोनों का सम पता है। We are not knowing the individual. We directly wanted to know. वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे ये पता है, गिवन है, ये हमें पता चल गया यहाँ पे COE की वैल्यू 110 है। So now we can easily find BOE. चलो let's try. क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOT is equals to 180. रीजन लिखना वेरी इंपॉर्टेंट, वरना टीचर को कुछ नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ से कॉपी करके लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। सो राइट द रीजन ऑन द साइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब COE हमें कितना मिला है? 110। चलो 110 रख दो। BOE कितना पता है हमें? नहीं पता, हमें फाइंड करना है BOE। ठीक है, वैसे ही छोड़ देते हैं। BOT कितना है? ये रहा BOT। BOT में कितना गिवन है? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, लुक एट इट। ओके, इट इज गिवन एज 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। इसको ऐड कर सकते हैं हम, तो क्या मिल जाएगा हमें? एंगल BOE प्लस 110 प्लस 140 150 इज इक्वल्स टू 180। सो BOE कितना हो जाएगा? 180 माइनस 150, दैट इज BOE की वैल्यू मिल गई हमें 30 डिग्री। क्लियर? फाउंड? मिल गया जो हमें फाइंड करना था। दिस वाज द वन थिंग दैट वी हैव टू फाइंड, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। देन हम फाइंड करना रिफ्लेक्स COE जो मिल गया 250 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन, इट कैन कम फ्रॉम 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में तो नहीं आएगा, इट विल बी कमिंग फ्रॉम 3 मार्क्स और 2 मार्क्स आल्सो, बिकॉज़ हमें दो ही चीज फाइंड करनी है तो 2 मार्क्स के लिए, बट बिकॉज़ दैट आर मोर माइट बी इट कैन कम फॉर 3 मार्क्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, जस्ट रिमेंबर कि हमें स्ट्रेट लाइन दिखनी है तो हमें क्या यूज करना है। जस्ट ट्राई टू फाइंड कि सब इतने सारे एंगल्स हैं, कितने एंगल्स? 1 2 3 4 5 एंगल्स आते हैं। So how you can find? You just have to adjust. यहाँ पे linear pair लेना है कि यहाँ पे लेना है, depending on what you have to find. Clear? Easy? Good. Amazing people. Next question पे चलें? थक तो नहीं गए? चलो start करते हैं। Second question from exercise. A is to B का रेशियो दिया है 2:3 and ये हमारा फिगर है, ये ABC है। अब इसका मतलब पता है सबको? अगर यहाँ पे कहीं से एंगल वैसा बनाया हुआ है ना, it means it is 90 डिग्री। एंड इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? 5 टाइप के एंगल्स पढ़े थे ना हमने। दिस इज राइट एंगल, है ना? दिस इज राइट एंगल। अभी क्या मतलब है इसका? जब मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ, दिस इज द 90 डिग्री, तो इस साइड पे क्या होगा? क्योंकि लीनियर पैर हमेशा 90 प्लस 90 180 होगा, तो अगर इस साइड 90 है तो डेफिनेटली इस साइड भी 90 होना चाहिए, राइट? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? अगर ये 90 है तो ये वाला मींस POY अगर 90 है तो POX वाला पार्ट पूरा 90 होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? POX का 90 होने का क्या मतलब है? POX को हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा POX है, कैसे लिख सकते हैं हम इसको? POM प्लस MOX लिख सकते हैं। एंगल POM प्लस एंगल MOX इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब P और M और MOX क्या है? A और B है। A और B का तो रेशियो दिया हुआ है, बट रेशियो दिया, रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब आप A बाय B आपने डिवाइड किया तो 2/3 आया। जरूरी नहीं कुछ तो आपने डिवाइड किया होगा कॉमन, है ना? कुछ तो कॉमन होगा तो हमने डिवाइड किया होगा, तो हम क्या लेते हैं? 2x और 3x लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम P हमारा A है, ये हमारा B है, दैट इज कमिंग आउट एज 90, है ना? अब A और B की वैल्यू रख देते हैं। A हमें 2x लिया, B हमें 3x लिया। क्यों लिया पता है ना? A to B is रेशियो। रेशियो का मतलब होता है when you're dividing you're getting a 2/3, बट डिवाइड करने का मतलब है कि आपको कुछ और भी होता है जो आप कट कर देते हो कॉमन में, है ना? वो हम कॉमन यहाँ पे हमें कंसीडर देना पड़ेगा। सो लेट्स टेक इट एज x। सो क्या मिला यहाँ पे हमें? 5x इज इक्वल्स टू 90। सो x इज इक्वल्स टू 90/5। क्या है ये x की वैल्यू यहाँ पे? 90/5 कितना होता है गाइस? इट इज 80। x की वैल्यू मिल गई 80। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। c फाइंड करना है। क्या करोगे c फाइंड करने के लिए? चलो जल्दी गैस करो। मैंने भी क्या बोला, जब भी हमें कोई एंगल फाइंड करना है, हमें जो एंगल्स दिख रहे हैं
ट्राई टू फिगर आउट कि कहाँ पे लीनियर पैर, कहाँ पे वर्टिकली अपोजिट कुछ बन सकता है। दिख रहा है कुछ ऐसा बनता हुआ समवेयर? दिख रहा है? चलो ये वाली लाइन देखो, एम ओ एन वाली दिख रही है, स्ट्रेट लाइन है, उसके साइड पे बी और सी क्या बना रहे हैं? लीनियर पैर बना रहे हैं, राइट? गेटिंग इट? तो क्या कर सकते हैं हम? वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर लीनियर पैर ऑन दिस साइड। ओके, नाउ लेट्स सी, एम ओ एन है, ये हमारा बी और सी रहा। बी कैसे मिलेगा हमें? हमने बी ए को क्या अज्यूम किया है? 2x, बी को हमने क्या अज्यूम किया है? 3x। हमें बी की जरूरत है यहाँ पे, तो बी को हम फाइंड कर लेते हैं। 3x का मतलब 3 into 18, मतलब क्या है हमारा आंसर? 54। बी की वैल्यू आ गई 54। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन इज इक्वल्स टू 180। रीजन? अरे आप पढ़ रहे हो, उसका रीजन ही पूछ रहे हो। लीनियर पेयर, इसका रीजन क्यों लिखे हैं वो हमें लिखना पड़ेगा, है ना? मैंने बताया ना, यू हैव टू राइट द रीजन एट एनी कॉस्ट। अब एमओ एक्स क्या था? बी था, ये हमें क्या है? सी है, तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू 180, है ना? बी की वैल्यू फाइंड कर ली, 54 प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, राइट? सिंपल। देन सी क्या करोगे? 54 को वहां भेज दोगे, माइनस करो, क्विक क्विक क्विक, जल्दी माइनस करो। क्या आएगा? 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2 एंड 1। तो सी की वैल्यू आ गई 126 डिग्री। बस सिंपल, दिस इज अ 2 मार्क क्वेश्चन। आपको सिर्फ सी फाइंड करना है, दिस इज प्रोसेस, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आएगा, प्रीटी सिंपल। चलो अब जो होमवर्क विल बी फ्रॉम योर एक्सरसाइज क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे। चलो मैं एक बार आपको एक ग्लिम्स दे देती हूँ, आपको करना क्या है, कैसे है। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में? हाउ द फिगर इज लुकिंग लाइक? इट इज लुकिंग लाइक दिस। ये बना दिया है ना, ऐसे ही कुछ है आपका फिगर। व्हाट इज द लेबलिंग? वी हैव गिवन P Q R S एंड T, राइट? गिवन है। अब हमें ये दिया हुआ है, ये इक्वल एंगल्स है। आपको क्या प्रूव करना है? आपको दिया है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इट इज गिवन, एंड यू हैव टू प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल्स टू एंगल PRT। मतलब PQS ये एंगल एंड PRT ये एंगल इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे? कैसे प्रूव करोगे? लीनियर पैर समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी एक रेज आ रही है, मींस ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इनका सम कितना हो जाएगा? 180। इस पार्ट में देखो, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180, है ना? तो आप क्या इक्वेट कर दोगे? ये दोनों का एंगल इक्वल है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल जाएगा ये दोनों भी एंगल आपको इक्वल, आप इजीली प्रूव कर, जस्ट 2 स्टेप प्रोसेस, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, यू विल डू इन द होमवर्क, प्लीज डू ट्राई इट एट होम, बिकॉज अगर आप खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश नहीं करोगे, यू विल ऑलवेज गेट द क्वेश्चंस। आपको आंसर्स हमेशा डाइजेस्ट में, ऑनलाइन, हर जगह मिल जाएंगे। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट सम क्वेश्चन यू हैव टू पुट योर एनालिटिकल स्किल टू डेवलप योर ब्रेन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? अब एक हम एज अ प्रॉब्लम जो हम देखते हैं कि हमें, मैंने क्या बोला था कि हमारे यहाँ मैथ्स हम कैसे पढ़ाएंगे? इन द इनोवेटिव वे, एप्लीकेशन बेस्ड वे। अभी एंगल्स और लाइन्स का कहाँ पे यूज आता है? सबको ऐसे लग रहा हो ना, कहाँ मैम ऐसे लाइन बना के हम कहाँ पे एंगल फाइंड करेंगे? सो बच्चों, होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इन सब चीजों का। व्हेन यू टॉक अबाउट इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, ब्रिज मेकिंग, कंस्ट्रक्शन, एवरीवेयर, द फाइंडिंग आउट द एंगल्स, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एंगल्स, कितनी लंबा होना चाहिए एंगल, कितना हमारा मेजरमेंट होना चाहिए, उसके बेस पर कितनी हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी। सो दिस इज अ वेरी वाइड एप्लीकेशन बेस्ड, राइट? सो आप जैसे जैसे पढ़ोगे, अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी तो यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब चीजों का यूज है। व्हेन यू आर स्टडीइंग राइट नाउ, इफ यू गो इन सम फील्ड लाइक दैट, यू विल हैव टू यूज दैट, क्लियर? एंड फॉर दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द एप्लीकेशन, जो फील्ड में जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जहाँ पे इनका एप्लीकेशन होगा मे बी, बट आपको 10th पास करना है ना बच्चों, 12th पास करना है, you have to get something good in your life, so at least for that you have to study the basic part, then only you can gain and pass out the school level, right? That's how you will get more in life. Keep studying, keep asking doubts पूछने से कभी नहीं डरना है, comment box में डालो, I'll give you the answers for every question.
Okay, chalo. I want this proof in the comment box also from all of you. The third question. I'll be back in the next lecture with some other few questions of this chapter and some more new concepts also. Bye. Take care.